Hello everyone, good afternoon. And in the today's class, we will start with the chapter number 1, Business Studies, Nature and Significance of Management. Now, in this today's class, we will study about the management, concept of management, features of management, objectives of management. Now, what is the learning outcomes from this video? You will learn after this video meaning of management, meaning of effectiveness and efficiency, features of management, objectives of management. Now, management is the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. There is a term used, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. प्रोसेस जहाँ पर भी आपको प्रोसेस वर्ड मिल जाता है, इट मीन्स इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, है ना. देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट दैट वी विल डिस्कस. गेटिंग things done with the aim of achieving organizational goals. It means कि we are getting things done, मतलब हमें जो काम कराना है वो किसी और से कराना है. ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना. और एम क्या है? व्हाट इज़ द एम? इज़ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखो, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप कर रहे हैं, उसका कुछ गोल है और वो गोल हमें अचीव करना है. और वो गोल हमें कैसे अचीव करना है? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दैट वी विल डिस्कस. these two terms are the important terms, effectively and the efficiently. लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट द प्रोसेस मैंने बोला था ना आपको. प्रोसेस में क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पर? मैनेजमेंट में आपका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. Then again start with the planning. It is a cycle. It is a cycle. Management is a process. Is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Getting things done. It means getting the required work done by the subordinate. हमें ये काम किससे करवाना है? सबॉर्डिनेट से कराना है. विद द हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट्स वी विल कंप्लीट आवर टास्क. नाउ you can see there is a two terms, efficiency and effectiveness. Efficiency, you can see the sound efficiency में साउंड किसकी आ रही है? सी की. एंड इफेक्टिवनेस में किसकी साउंड आ रही है? टी. इफेक्टिवनेस टी की साउंड आ रही है. यू कैन रिकॉग्नाइज दिस वर्ड बाय द साउंड. यू कैन रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. सी efficiency में साउंड किसकी? सी की. इट मीन्स योर एम इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. Your aim is to reduce the cost and optimum utilization of resources. And effectiveness, it means you have to accomplish the task within a time limit. आपको वो टास्क किसमें? एक टाइम लिमिट के अंदर उसको कंप्लीट करना है. यू हैव टू अचीव द गोल्स विद इन अ टाइम लिमिट. टाइम, देयर इज मोर इम्पॉर्टेंस गिवन टू द टाइम. एंड एफिशिएंसी में मोर इम्पॉर्टेंस आर गिवन टू द कॉस्ट. Doing the task correctly and with the minimum cost. And effectiveness, doing the right task, completing activities and achieving goals. You can say that these effectiveness and efficiency are the two sides of the coin. Are the two sides of the coin. We have to achieve both of them. Suppose I will give you an example. Suppose a company receive order of 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव किया है, विच वी हैव टू बी कंप्लीट विद इन अ 1 मंथ. सपोज वी आर अचीविंग दिस टास्क इफेक्टिवली. हमने उस टास्क को इफेक्टिवली अचीव कर दिया है, बट देयर इज़ अ लॉस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इफेक्टिवली इट मीन्स कि हमने उसे 1 मंथ के टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिया है उस टास्क को, बट देयर इज़ अ लॉस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. बट नॉट, वी आर नॉट एफिशिएंट इन कंप्लीटिंग द टास्क. देयर लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज.
Now this is the one example, this is a case of effectiveness. Now we are not able to achieve the target, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month वी आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, बट we will produce the product efficiently with the minimum cost. There is less wastage of resources, there is no wastage of resources, but it is not, you can say that ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज हमने आफ्टर द टाइम लिमिट अपना टास्क कंप्लीट किया है, तो इसीलिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बोथ आर द सेम साइड्स ऑफ द कॉइन. You can see here effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin, but these two aspects need to be balanced in every organization, ठीक है, it needs to be balanced. Therefore it is important to the management to achieve goals effectively with the minimum resources. High efficiency without being effective is not desirable. Both inefficiency and ineffectiveness lead to the poor management. Now next we will do the characteristics of management. Yes, now characteristics of management, management के क्या क्या features होते हैं, तो वो let us start with the topic. Management is a goal oriented process. Management is a goal oriented process. No, everyone knows that कि हमने कोई भी business start किया है, एज वी स्टार्ट अप द बिजनेस, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, हमने क्यों स्टार्ट किया है. सपोज हम यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि हमारा गोल है, एक सपोज रिटेल स्टोर है, उसमें गोल है कि इंक्रीज सेल करना, दिस इज़ द गोल, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल. स्कूल का क्या होता है कि चिल्ड्रन को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम गोल्स, तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नाउ सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. Pervasive it means you can say that management is required in each and every organization. You can say that management is required in each and every organization, whether it is small organization, whether it is medium sized organization, whether it is large organization. The every kind of organization we required management. Suppose you can say hospital, hospitals में भी management की requirement है, कंपनीज़ में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इवन यू कैन सी इन योर स्कूल, तो स्कूल में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ एन यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. नाउ आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल, you can see here, so Nusli Wadia of Bombay Dine, Bill Gates of Microsoft, Shiv Nadar of HCL Enterprise, Indra Noani of Pespico, the principal of our school. These are the, in these organization, they all manage organization, school, hospital, shops, large corporations are all organization with the diverse goal that are aimed at achieving something. इन सबका क्या एम है, कुछ अचीव करना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है. तो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स वी नीड मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, इसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर एग्जांपल यू कैन से देयर इज़ अ रिटेल स्टोर हु इज़ सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, तो उसका क्या है, उसका वर्क है कि कुछ वर्क प्रोवाइड करना, कुछ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से द बैंकिंग सेक्टर है, उसका मोटिव है अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना. दे मे एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड द लोन टू देयर कस्टमर्स. तो they have some work, every organization have some work. तो उनका है कि अपने वर्क को ट्रांसलेट करना इन टर्म्स ऑफ गोल्स, यू कैन सी, और सो दैट दे कैन अचीव दैम.
तो वर्क को हम किस टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं, गोल्स की टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कि हम उनको अचीव कर सकें. तो वी हैव टू मैनेज द वर्क. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हॉस्पिटल्स में है, हमारा हॉस्पिटल्स में किस तरीके का काम प्रोवाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. ठीक है. नाउ यू कैन से इन अ फैक्ट्री product is manufactured, and you can say in a textile industry or a garment shops the customer needs are satisfied. तो इन गोल्स को इन वर्क को हम किस में ट्रांसलेट करें, इन टर्म्स ऑफ गोल्स, सो दैट दे कैन बी अचीव्ड. The next is management of people. The management of people. People, uh, everyone knows that for running an organization we need a people, a human resource. The human resource is the greatest assets of the organization. ठीक है. Is the greatest assets of the organization. The greatest assets of the organization, you can know that you know that कि in any organization the people's you can say that हमने अभी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही पढ़ा है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू सबॉर्डिनेट. हम सबॉर्डिनेट्स क्या हैं, आर द पीपल. तो अगर हम वो परफॉर्मेंस, हमें अपना वर्क जॉब कराना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वी नीड द पीपल. गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. तो पीपल्स किसके साथ डील करते हैं, management deals with the employees, subordinates. There are various kinds of, there are two dimensions. Managing people have two dimensions. It means dealing with the employees as individual employees के साथ डील करते हैं. और employees के देखो, every person have their different behavior, तो उनके साथ different types of behaviors के साथ डील करते हैं. It also means dealing with the individual as a group of people. तो एज एन इंडिविजुअल भी डील करते हैं मैनेजर, और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी डील करता है. द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक द पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग द स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट. तो वी हैव टू मेक द स्ट्रेंथ को हमें इफेक्टिव बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड वीकनेस को इररिलेवेंट करना है. नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. देखो, नाउ यू कैन सी ऑपरेशंस. देखो, एवरी प्रोडक्ट like you can say there is a production cycle. Every require a production process होता है. We first of all we buy the raw material, then raw material is converted in raw material processing होती है, then raw material is converted into the finished product. This is a operating cycle. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देयर प्रोडक्शन साइकिल होता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं. तो देयर इज़ एन इंटरलिंक्ड बिटवीन, you can say there is an interlinked between the work, management of work and the management of people, because they you can say in this manage operation cycle you can say cycle है, there is a cycle. पहले आप प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, देन रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग हो रही है, देन रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, देन यू विल ऑफर फॉर सेल. So there is the connection interlinked between the management of work and the management of people. Now next feature is management is a continuous process. As you know that management is a process. The management process start from planning. Management process start from planning, then organizing, then staffing, directing and controlling. तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. वाई इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस? देखो, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लान्स बनाना. देखो, इन केस यू कैन सी दैट कि प्लानिंग हमने बनाई, अब उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मे बी हमने लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि आपने टारगेट सोचा है कि मेरे टर्म 1 में 90% आ जाएंगे. ठीक है.
बट आप नहीं अचीव कर पाए, यू अचीव ओनली 80%। आप क्या देखोगे कि ये डेविएशन किसकी वजह से आया है, कि आपका टारगेट था 90% का और 80% आपके मार्क्स आए। तो यू विल लुक आफ्टर द रीज़न कि आपके ये कम मार्क्स किस रीज़न से आए। तो देन आफ्टर दैट, सो दैट यू कैन अचीव better marks in your future, or you can achieve your targets in future in your board exam. So you will take the actions so that you can achieve your plan. तो it is a continuous process, ये आपका एक वन टाइम जॉब नहीं है, ये आपकी it is a continuous process. Management is a group activity. तो management is a group activity. You can see an organization, in an organization is a collection of diverse individual. तो एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट रन. फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वी नीड्स अ लॉट्स ऑफ पीपल, और एवरी वन हैव अ डिफरेंट क्वालिटीज, हैव डिफरेंट बिहेवियर, हैव डिफरेंट नीड्स. तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ individual. Management is a group of individual, you can say is a group activity. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but the member of the organization, they work towards the fulfilling the common goals, organizational goals. देखो, सब इंडिविजुअल पर्सन का अपना इंडिविजुअल गोल होता है, बट व्हेन दे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. नाउ you can see management is a dynamic function. You know that our environment is goes on changing every time. हमारा जो environment है वो change होता रहता है, और and every organization is operate in a dynamic environment. Every organization is operate in a dynamic environment. In order to survive in the environment, in order to survive in the dynamic environment, तो मैनेजमेंट को अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं. ठीक है, तो बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन दी इन्वायरमेंट. हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. फॉर यू कैन सी डोमिनोज जो है अपने मेन्यू में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस लाता है, वेराइटी ऑफ पिज़्ज़ाज इंट्रोड्यूस करता है, बिकॉज कि ऐसा नहीं करेगा तो डोमिनोज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज management is an intangible force. Management is an intangible force because you can see intangible, it means you can't touch, you can't see, only you can feel. You can't touch, you can't see, you only can feel. इट प्रेजेंस, मैनेजमेंट की प्रेजेंस आप फील कर सकते हो. इट इज़ लाइक अ सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है ये सिस्टम. हम क्या है, ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है. एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हर एक चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पे है, अपना आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो. तो इट इज़ एन इंटेंजिबल, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. तो इट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग कि विच वी कैन जस्ट ओनली फील. तो दीज characteristics we have done: goal oriented, pervasive, multidimensional, continuous process, group activity, dynamic function, and intangible force. Now we will do objectives of management. कि एक मैनेजमेंट में, एक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है. There are 3 types of objectives: organizational objectives, social objective, and personal objective. तो one by one we will do. First of all we are doing organizational objective. देखो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप करी है, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले कि हम उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें. ठीक है, हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ मटेरियल फिजिकल रिसोर्सेज. हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हम बिज़नेस को सरवाइव हो सके. हमारा बिज़नेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरवाइव हो सके. तो ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट अर्न रेवेन्यू.
तो उसके रिवेन्यूज कितने होने चाहिए, एटलीस्ट उसके इतने रिवेन्यू होने चाहिए जो कि वो अपनी कॉस्ट को कवर अप कर सके. ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव कि आपका इतने रिवेन्यू जनरेट हो कि आप अपनी कॉस्ट को कवर अप कर सकते हो. यू कैन से सर्वाइवल, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द सर्वाइवल. नो लॉस नो प्रॉफिट, कॉस्ट इज इक्वल टू द रिवेन्यू. This is the first point of organizational objective. There are three objectives of the organization: survival, then when you are able to survive in the market, then you want to earn profit. Your revenue will be greater than your cost. Revenue will be greater than your cost. You are able to cover your cost and the risk of the business. Okay, now you are earning profit, then after some time you want to grow. You want to expand your business, you want to diversify your business. Suppose diversification कैसे, you want to set up the number of branches. सपोज आपकी एक ब्रांच दिल्ली में है, आप मुंबई में एक ब्रांच ओपन और करोगे, तो योर एक्सपेंशन, सपोज नाउ यू आर डीलिंग इन अ वन प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, लाइक यू हैव अ यू कैन से मोबाइल की शॉप है, मोबाइल में आप और वैरायटी उसकी इंक्रीज़ कर रहे हो. ठीक है, तो देयर इज़ और सेल्स वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ हो रही है. पहले आपके शॉप पे या इन योर ऑर्गेनाइजेशन 20 एम्प्लॉयज़ थे, नाउ इट इज़ 100 ऑफ एम्प्लॉयज़. इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रोइंग. So this is the example of survival, profit and growth. These are the three organizational objectives. Now, the social objective. Social objective means the organization is thinking about the society. Basically, now every organization is also paying attention to the society also. Every organization have some social obligation, like we have to produce, every organization need to produce environment friendly product, employment opportunities generate करना, and like you can say प्रोडक्ट को हमें बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना, एंड प्रोडक्ट चीपर हो, अफोर्डेबल हो, एंड यू कैन से प्रोवाइड करना बेसिक फैसिलिटीज़, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, क्रचेस अब एम्प्लॉयज़ के क्रचेस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस के लिए. These are some social objectives. And the next is personal objectives. A personal objective, it means the personal development of employees, like you can say the career opportunities, better career opportunities provide करना employees को, time to time उनको bonus देना, उनकी salary में increment करना, and social recognition. यू कैन सी सोशल नीड्स को उनकी फुलफ़िल करना, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करना, उनका यू कैन से पर्सनल ग्रोथ, हायर लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना. दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Now these are some example of the social objectives. Crutches for the kids of employees. Now there are three objectives: organizational objectives, social objectives and personal objectives. Now thank you for watching my video. Please like, subscribe and share this video. Thank you.